Atul bhai, please start. Okay. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત કર્ણાટક ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના પ્રવચન મારી પાસે થિયોસોફી કઈ રીતે આવી ના વક્તા ચૈત્રાજી, મૃણાલ જોશીજી, પૂનમજી તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કર્યું હતું. કેશવરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. Vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light. O hidden light, shining in every. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who May each who feels himself as one with thee. know he is also one with every other. No, he is also. Oh, he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. કેશવરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યો માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. बहुत बहुत धन्यवाद और बस आप सबका स्वागत है. और मृणाल जी, हर्षवर्धन जी, ईश्वर जी, अतुल जी और चैत्रा जी. तो छोटा सा परिचय चैत्रा जी का दूंगा. ये जो हमने शुरू किया है हाउ थियोसॉफी केम टू मी, इसका ये भाग 2 है. भाग 1 में हमने पहले 2 चैप्टर्स लिए थे. भाग 2 में हम 3 और 4 चैप्टर ले रहे हैं. एक छोटा सा आपको जो फ्लैशबैक है वो चैत्रा जी आपको बताएंगी. चैत्रा जी असिस्टेंट प्रोफेशनल हैं और बी उन्होंने किया है एमटेक कंप्यूटर साइंस में और इंजीनियरिंग की पीएचडी वो इस वक्त कर रही हैं. बैकग्राउंड उनका है थियोसॉफिकल सोसाइटी का इस तरह से कि उनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं वो ईएस के मेंबर थे और वो भी 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 50 वर्ष तक. और थियोसॉफी का जो आइडिया था या उसमें इंटरेस्ट था वो उन्हें उनकी माताश्री से मिला और उसी तरह से कुछ डिसिप्लिन फॉलो करते करते ऑफिशियली वो एक मेंबर सिर्फ 10-1 साल पहला बन पाई. वे देवापल्ली से कनेक्टेड हैं और संडे की मीटिंग्स वगैरह बेंगलोर सिटी लॉज वगैरह की अटेंड करती हैं. और ये उन्होंने जो जिम्मा लिया है उसके लिए बहुत काबिल तारीफ है. आइए आपका आज इंग्लिश में विषय करिए. पहले आप 2 मिनट में पार्ट जो हमारे पिछली चैप्टर 1 और 2 थे उसका एक समीक्षा दीजिए और उसके बाद आप आज का विषय शुरू कर सकते हैं. धन्यवाद. Okay. Thank you, sir. Thank you for introducing. Today, first I will just summarize the first and 2 chapters, whatever I did in the first section. So in the first section, we saw that C.W. LEADBEATER, his previous life. So his previous life, what happened, how did he meet Pythagoras, and what is the relation between Pythagoras and Kutumi master, and how once when he was born as C.W. LEADBEATER, what happened, how was the connection between the previous life and the current life, and then how did he come across Theosophical Society, and there were some incidents in his life and how those were influencing him to believe on the Theosophical Society things. And he had his own quality of going through different haunted houses and ghosts and all, and how he experimented few things with his mom, and he found out some media,
Then he goes through the media and what were the difficulties he had to join Theosophical Society. He had to get one more person to address him to the society. All that we saw. And though he had not met Madame Blavatsky at the beginning, we just saw like how did he get introduced to her through indirectly through his friend. Some story which his friend told that he met Madame Blavatsky. She had done a kind of prediction to his life, his friend's life, and what some things and some more books he read, and how he was connected to AP Senate. So till there we saw. And then when he met Senate, he went through the books and all, and till there, and he also got some letters. Till there we saw. So today, after he got letters, he got introduced into the Theosophical Society, all theoretical and all. Now we will see what happened after that. Okay, just let me share the slides for you. Screen. Do you want me to share? Yeah, I'm sharing. Okay. Okay, so this is chapter 3 and 4. Yeah, so agenda today is in chapter 3, 3 topics are coming. That is practical work, or some of the practical works which C.W. Leadbeater did in Theosophical Society, and what is the influence of Dr. Kingsford, what happened during her time. There were few incidents which he would like to share with us in his book. And before meeting directly Madame Blavatsky, what are the scenes happened? Those things we will see in 3rd chapter. Then he, after seeing her behavior, he has close interaction with Madame Blavatsky from many years. And in chapter 4, he completely want to address the world, whoever have not seen her after her life. He wanted to say what kind of person she was. That is what is in chapter 4 completely as a 4th topic. So firstly, practical work. What happened? So we saw C.W. Leadbeater, he had gone through many books and all, and he was almost kind of known person to all the philosophies over there. So usually Episenet used to get letters from many people asking questions. What is this? Any concept? It was like many bundles, volumes of questions were asked. So he now, after reading all theoretical things, now it was time for him to do some practical work. So he got an opportunity to answer those letters. So, but AP Senate, when he asked, can you write this? He was not ready. C.W. Leadbeater said that he's not so much expertise to do it. But he said that, no, you can do it. You have read, you have attended the meetings. You used to attend many meetings without, once he joined as a member, he was attending all the meetings. So he said, you can do it. So when after that, despite all initial reservation, he assured that, and he was writing the letters. Some letters were like, they used to ask questions in such a way that could be understood that they had misunderstood the concepts. So he had to explain them from the beginning, like what is it, and so this would take a long time. So he dealt with range of questions, all kind of questions, easy to difficult. Some were lengthy explanation because their understanding was hard. So he had lots of physical work like writing. He need to spend knowledge. During this time, he had a kind of development that once he started writing all this, and for to answer them, he had to go through some more knowledge and all. So this would increase his knowledge also, and this made some people attracted to Theosophical Society. Okay, despite the laborious manual writing process, this effort resulted in attracting people, new members to the society, and however, his knowledge also increased. Now, the second is like Dr. Kingsford issue is like, what happened is once in London Lodge, there was a kind of a dispute between Dr. Kingsford and AP Senate. So Anna Kingsford was a Lord's president, and she had her own perspective from her past life, kind of concepts she used to discuss in a different way. And AP Senate used to get knowledge from the Oriental teachings, like masters used to say and all.
Generally what people would understand is episenates, but Anna Kingsford, what she expected is she wanted to, whatever he is telling, she asked to rechange or convert it into hermetic form. Okay, that way of understanding was hard for the people also, but still she used to ask, okay, please reinterpret in this method. So this kind of issues was happening. This was like in between. Okay, now for example, Mr. Sennett explained few concepts and all, then she used to interrupt, okay, please tell it in a hermetic form, though it was not necessary. So this kind of fight used to happen between them. This even started in some concepts that this went very far. Okay, it was like a frustration among the team people who were in the lodge. They some were towards Mr. Sennett and some were towards Anna Kingsford. So it was like not good, and this was influencing even to the masters who were behind the teachings. AP Sennett, he used to get through Oriental teaching through the masters. So this was causing a kind of impatience and strong feeling of displeasure among the members as well as the masters. Then this issue went little further, where they started sending the pamphlets to discuss about this. Is it right or this? A kind of propaganda used to go. So that time, though that reached even the people like T. Subbarao and Olcott and Mohini Chatterjee, which we saw in the first section. So they had to come and interfere. And though Madame Blavatsky was nearby in Paris, but she was little ill. If she was there, it would have dealt very fast and it would have been better. But she, because it was in very dangerous situation for her life, so she was ill in Paris, she couldn't. So they came from India to solve what is this dispute. The people, after he came, Colonel Olcott and Mr. Mohini Chatterjee came. They almost split into two groups. Like imbalance was happening. So maximum people went to Mr. Sennett group and some went into Dr. Anna Kingsford group. So though these fights were happening, though she was interfered, after a kind of 12 months, there was like, we have to change the president, right? Every year election happened. Similarly, they started having an election. In this election, so Maitland's was towards Anna's Kingsford. So Mr. Sennett and Anna Kingsford had a kind of dispute. Even Miss Sennett, he didn't want to be nominated because he had kind of personally fight. It was very famous for people know that they are against each other. So he said he didn't want to. So when the election happened, however, the Senate, Mr. Sennett won, but he suggested Mr. G.B. Finch, a respected barrister and former senior wrangler at Cambridge, as a candidate, and he became the president, with Mr. Sennett becoming the secretary. So though election happened, not many, very few relatives or friends of Anna Kingsford were there to vote for her, and remaining maximum majority came under Mr. Sennett. So this was not a satisfying things for Dr. Kingsford. She was not happy with the election. Whenever the meeting used to happen, she used to interfere in between or cause kind of chaos around. Even once there was a meeting, already the London Lodge had trouble to go through some of the issues. Now she also started adding more pressure. Struggling to make progress, she started little more interrupting. The president found her chairing the meeting once. What happened? He had little difficulty to handle one particular scene. The meeting took place in a long room with lots of attendees, and there were chairs around. So that day, which CWL LEADBEATER witnessed some scenes over there. So he and Mr. Varley, they came and they were sitting at the end near the entrance, and he was seeing. So when somebody were telling something, she used to interrupt, and it was hard for Mr. Dr. Colonel and Mohini to stop her. Okay, so after some time, suddenly this all kind of chaos was happening. It stopped suddenly when a woman, stout lady in a black, Madame Blavatsky, entered the room and seated herself
bringing an unexpected turn to the proceedings. So what happened is the moment she came, she saw there was a kind of chaos around. She came. This is the first time when CWL Leadbeater saw her first time. So she was like, who is this? And everyone saw, and suddenly a kind of scene happened, like she's loudly commanded Mohini. Mohini means Mohini Chatterjee. And he saw her, and immediately he falls on her feet. And Mr. Senate came out, and he started having little bit of conversation. And he introduced to the crowd immediately that this is our Madam, let me introduce to the London Lodge as a whole, Madame Blavatsky. So this kind of scene was astonishing, surprising for the people around. And when the moment they heard that Madame Blavatsky, that is when CWL Leadbeater got to know. And then the scene, like everyone understood, okay, she came, like that. So some were happy, some were sad, like howed, delighted, like they were in groups. And some kissed. In that tradition in 18th century, it was a kind of a friendly thing to kiss her hand. And some kneeled down, and few more came up with tears. And in that urgency, though there was lots of people trying to approach her, she at the end, very fast, she sent them away, brushed away. And she went to the Mr. Colonel Olcott. And here she asked few questions, and she wanted to know what is the situation, everything. She demanded explanation from them. And Colonel Olcott and Mr. Senate did their best to explain whatever they can. And she immediately, she closed the meeting, and she said, you guys leave. And then she asked to only those officials who were involved to meet her in a separate room next to that the meeting where it was happening. So they took her, and they sat there, and they had a conversation which all this CW at Leadbeater was seeing. So now when she was sitting there, and when she got to know all these things, she scolded them like a school kids. She said, is this the way you guys are behaving? Like, you're fighting, Mr. Senate and Dr. Hannah Kingsford, you both are fighting and misbehaving like school kids. And this was like very nice thing which he didn't expect, CWL Leadbeater. And she even made them to shake hands and remove the disputes over there. So, and she told Dr. Anna Kingsford to have her own hermetic lodge separately. So this is the one symbol which I found. But this started own, but not many people joined there. And later the number of members decreased, and it got vanished. Okay, so this was how she separately made her have her own perspective and have her own lodge. So next comes with the more, I met her founder. So Madame Blavatsky, after this scene, everything over, along with Colonel Olcott, they went to Senate's house, and they were sitting together and talking. And she told a little dissatisfaction that you guys didn't manage this kind of issues and all. She was saying all this. Then after this discussion, Mr. Senate told about her some journals of light, and about CWL Leadbeater, what happened, the spirits. In the previous section, we saw that there were a media to send the letters. So when they were sending letters, Ernest rejected the master's responsibility happened. Like, he was not sending the letter as master told. So those things she was informed. After hearing all this, Madame Blavatsky, little she understood about CWL Leadbeater, and she made one kind of comment. That is, this line, she says that mean is like, usually people have a different perspective. As a clergyman is a traditional, a kind of a priest. When he wanted to join the Theosophical Society, people had a doubt that, okay, they were not happy to take at the beginning. Okay, so she says there are lots of hypocritical thinking, and they used to boycott and all. People think they were stupid, but you made a kind of a brave action, and good that you did it. At the beginning itself, you have made such a good progress. We will see in future how you will do. That kind of positive note, it made him very happy, and it increased his enthusiasm to learn more. And wherever Madame Blavatsky's speeches were given, he used to be present. Though he had little bit of shyness, he used to attend
regularly, never missed her. So much close she was. So he feels now in this chapter, he says that he feels to introduce what kind of lady Madame Blavatsky was, how future generation should know. So that is why the next chapter is addressed here. Now what he Okay. says is, This is first half. yes, first half. Yeah, thanks. So don't go for the second half. Yeah, I forgot. No. Thank you. प्लीज हाँ मृणाल जी वेलकम है आपका और एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा आपका 2 मिनट होल्ड ऑन करें। मृणाल जी जो है वो MSc जूलॉजी उन्होंने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है। पूना थियोसॉफिकल लॉ उन्होंने 2017 में ज्वाइन की और प्राणी किलिंग अर्हत लेवल तक उन्होंने किया है। बड़ी सक्रिय थियोसॉफिस्ट हैं। अनेक मराठी थियोसॉफी के स्पीचेस में वो मराठी फेडरेशन में बोलती रहती है और लगातार त्रिवेणी में भी अपनी भाषाई अनुवाद तो करती हैं, लेकिन ऐसे अनुवाद करती है कि समझ में आ जाता है सभी को, जिसको थोड़ी सी भी मराठी आती है। तो आइए, आपका स्वागत है। आपके पास 12 मिनट है। फर्स्ट आप जहाँ तक चैत्रा जी ने किया है वहां तक करना। ठीक है। नमस्ते। त्रिवेणी के मंच पर CW लेडबीटर इनकी पुस्तक हाउ थियोसॉफी केम टू मी, इसके 2 प्रकरणों का अभ्यास हमने पहले लेक्चर में किया है। अभी आज अगले 2 लेक्चर्स का हम पढ़ेंगे। नमस्कार, मराठीतून भाषांतर करते आहे। आधीच्या 2 लेक्चर्स मध्ये आपण लेडबीटर यांचा मागच्या जन्मातला थोडा आढावा घेतला, की ज्यात ते पायथागोरस यांच्याशी त्यांची भेट झाली होती आणि नंतर त्यांनी नंतर जो जन्म घेतला आत्ताचा जो CW लेडबीटर ह्या नावाने, तर त्यात त्यांचा थिओसॉफीशी कसा संबंध आला, त्यांचं आधीचं आयुष्य कसं होतं थिओसॉफी मध्ये येण्याआधी, आणि मग ते कसे आकर्षित झाले थिओसॉफीकडे, आणि आकर्षित झाल्यानंतर सुद्धा जेव्हा त्यांनी ते क्लर्जीमॅन होते, त्यानंतर सुद्धा त्यांना जेव्हा थिओसॉफी मध्ये प्रवेश घ्यायचा होता तेव्हा त्यांना बरीच खटपट करावी लागली, त्यांना सहज प्रवेश मिळालाच नाही। तर सिनेट यांचं ऑकल्ट वर्ल्ड हे पुस्तक त्यांच्या वाचनात आलं आणि त्यांना ते वाचून झाल्यानंतर फारच ओढ वाटू लागली थिओसॉफीची आणि त्यांनी थिओसॉफिकल सोसायटी जॉईन करण्याचा निर्णय घेतला। थिओसॉफिकल सोसायटीचे फाउंडर मॅडम ब्लावट्स्की यांच्याबद्दल त्यांनी एका मित्राकडून ऐकलं होतं आणि त्यांना खूप उत्सुकता होती की त्यांचे जे विचार आहेत आणि त्या विचारांशी त्यांना जुळवून घेणारी अशी काही संस्था आहे आणि त्यात त्यांना जॉईन करून घेणं आवडेल, ह्या दृष्टीने त्यांनी मिस्टर सिनेट यांची गाठ घेतली आणि त्यांना इथे थिओसॉफिकल सोसायटीमध्ये प्रवेश मिळाला। आता ह्यापुढे जेव्हा त्यांना प्रवेश मिळाला त्यानंतर पुढे काय झालं हे आपण आजच्या 2 लेक्चर्स मध्ये 2 चॅप्टर्स मध्ये बघणार आहोत। तर CW लेडबीटर यांनी थिओसॉफीची मुख्य तत्वे आत्मसात केल्यानंतर त्यांना इच्छा झाली की सोसायटीच्या कामात सक्रिय सहभाग घ्यावा। तसा प्रस्ताव त्यांनी मिस्टर सिनेट यांच्या पुढे मांडला आणि उत्तरादाखल त्यांनी मोठा ड्रॉवर उघडला जो पूर्णपणे पत्रांनी भरलेला होता आणि सिनेट हे खूपच व्यस्त असायचे आणि इतक्या साऱ्या पत्रांना उत्तर देणं किंवा काही वेळेस त्याची स्पष्टीकरण देखील मागितली असायची, तर ते देणं शक्य नव्हतं। शिवाय त्या काळात असं काही आपल्यासारखे मॉडर्न टेक्नॉलॉजीच नव्हत्या, त्यामुळे लिहून वगैरे अशा पद्धतीने त्यांना पत्रांची उत्तरं द्यावी लागायची, तर ते त्यांच्यासाठी खूपच क्रिटिकल काम होतं। म्हणून त्यांनी ह्यांनी जेव्हा विचारलं की मी काही सक्रिय सहभाग घेऊ शकतो का, तर मला काहीतरी काम द्या, तेव्हा ते म्हणाले या सगळ्या थिओसॉफी बद्दल चौकशी करणाऱ्या पत्रांचा जगभरातून दररोज माझ्यावर भडीमार होतो। तुम्ही जर या पत्रांना उत्तरे देण्याची जबाबदारी उचलली तर मोठ्या प्रमाणात लोकांची सेवा होईल। मिस्टर सिनेट यांनी CW लेडबीटर यांना खात्री दिली की तुम्ही हे काम चांगल्या रीतीने करू शकाल, कारण तुम्ही सर्व पुस्तके वाचली आहेत, जवळजवळ सर्व मीटिंग्स अटेंड केल्यात आणि तुम्हाला तेवढे पुरेसे ज्ञान आहे। कारण आधी CW लेडबीटर यांना शंका वाटत होती की ते त्या प्रश्नांना कशी उत्तरं देऊ शकतील किंवा त्यांना हे जमेल का, त्यांच्याकडे तेवढं नॉलेज आहे का। पण मग सिनेट यांनी त्यांची शंका दूर केली। मग CW लेडबीटर यांनी हे काम स्वीकारले आणि पूर्णपणे झोकून देऊन
भरमसाठ पत्रांना स्वतः लिहून उत्तर देणे, स्पष्टीकरणे देणे ह्या मोठे कष्टप्रद काम होते. आणि त्यामुळे काय झालं की याची परिणिती नवीन सभासदांना आकर्षित करण्यात व थिओसॉफीचे ज्ञान इतरांना शिकवण्याच्या अनुभवातून चांगलंच प्रसारित झालं. कारण लोकांना ज्या काही शंका होत्या, जी काही प्रश्न होती, त्यांची उत्तरं यांच्या पत्रातून त्यांना मिळत गेली, त्यांच्या शंका निरसन होत गेल्या. आणि मग त्यांचं जे थिओसॉफी बद्दलचं जे काही प्रेम वाटत होतं त्यांना, ते अधिक वाढीस लागून थिओसॉफिकल सोसायटी जॉईन करण्याची लोकांना इच्छा वाटून त्यांनी ती जॉईन केली. त्यावेळी लंडन लॉजच्या प्रेसिडेंट डॉक्टर ॲना किंग्सफोर्ड आणि मिस्टर सिनेट यांच्या थिओसॉफी शिकवणी संदर्भातील दृष्टिकोनातील तफावतीमुळे लंडन लॉजमध्ये तणावाचे वातावरण होते. कारण ॲना किंग्सफोर्ड यांचे विचार आणि मिस्टर सिनेट यांचे विचार खूप वेगळे होते. ॲना किंग्सफोर्ड यांचे दृष्टिकोन त्यांच्या पूर्वजन्मातील वैयक्तिक अनुभवातील शिदोरीवरून आलेले होते. तर मिस्टर सिनेट यांच्याकडची माहिती पौर्वात्य पद्धतीत पौरात्य गुरूंकडून मिळालेली असल्याने त्यांचे खटके उडायचे. आणि मतभेदाचा अंतिम परिणाम काय झाला की ठराव, पत्रके आणि लॉज मधल्या विभागणी होण्यात झाला. आणि त्यावेळी मॅडम ब्लावत्स्की आजारी होत्या, त्या पॅरिसला होत्या. आणि हा जो गोंधळ चालला होता लंडन लॉज मध्ये, तर त्या तिथे येऊ शकण्याच्या परिस्थितीत नव्हत्या की हे सगळं मॅटर त्या सॉल्व्ह करतील येऊन. आणि मग त्यांची अनुपस्थिती, आणखीन डॉक्टर किंग्सफोर्ड यांचं पण आजारपण, यामुळे हे प्रकरण अगदी क्लिष्ट होऊन बसलं. आणि मग पुढच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मिस्टर सिनेट यांनी पुढाकार घ्यावा अशी इच्छा केली लोकांनी. पण त्यांनी पत्रकातून व्यक्त केलेल्या डॉक्टर किंग्सफोर्ड विरुद्धच्या शत्रुत्वाच्या कारणाने त्यांनी नकार दिला. डॉक्टर किंग्सफोर्ड लोकप्रिय नव्हत्या, त्यांच्या बाजूने खूपच कमी सभासद होते, त्यांचे विचार पटणारे. आणि आणि मिस्टर सिनेट यांच्या बाजूने बरीच संख्या होती सभासदांची. तसं असूनही, डॉक्टर किंग्सफोर्ड लोकप्रिय नसूनही मिस्टर मेटलँड त्यांचे काका होते, त्यांनी पुन्हा पद घ्यावं म्हणजे ॲना किंग्सफोर्ड यांनी असा प्रस्ताव मांडला. पण त्याला अगदी अत्यल्प असा प्रतिसाद मिळाला. अखेर मिस्टर जी.बी. फिंच अध्यक्षपदासाठी निवडले गेले आणि मिस्टर सिनेट सचिव झाले. तर अशा प्रकारे हे लंडन लॉजचं वातावरण होतं. आणि त्या लंडन लॉज मध्ये ज्या काही सभा वगैरे व्हायच्या, तर त्यात जास्त कोलाहलच असायचा आणि भांडण तंटेच व्हायचे, वादविवादच व्हायचे. तर HPB यांना फक्त ऐकूनच CW लेडबीटर ओळखत होते. पण मग त्यांची भेट कशी अचानक झाली ते आता आपण बघू. तर एका निराशाजनक सभेच्या दरम्यान डॉक्टर किंग्सफोर्ड यांचे व्यत्यय अधिक तीव्र झाले, त्यामुळे अस्वस्थता वाढली. अचानक परिस्थिती बदलली जेव्हा काळ्या वस्त्रातील एका धिप्पाड स्त्रीने खोलीत प्रवेश केला व त्यांनी बसल्यानंतर तेथील कार्यवाहीला अनपेक्षित वळण लावून दिले. आधी न पाहिलेल्या मॅडम ब्लावत्स्की अचानक कोलाहल माजलेल्या सभेत लंडन लॉजमध्ये प्रवेशकर्त्या झाल्या आणि त्यांनी चालू असलेल्या भांडणांच्या गदारोळाबद्दल रोष व्यक्त केला. त्यांनी आदेश दिला, मोहिनी, आणि तत्पर मोहिनी त्यांच्याजवळ पटकन आले व त्यांच्या पायांवर साष्टांग लोटांगण घातले. मिस्टर सिनेट यांनी मॅडम यांची उपस्थिती जाहीर केली आणि तिथे हजर असलेल्या मंडळींना ओळख करून दिली. मॅडम ब्लावत्स्की यांनी या सभेतील गोंधळाबद्दल अधिकारवाणीने स्पष्टीकरण मागितले. अखेर समाप्तीचा आदेश दिला. मग त्यांनी अधिकाऱ्यांसोबत सभा घेऊन लॉजच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यावेळी CW लेडबीटर मिस्टर सिनेट यांच्या घरी राहत होते. मॅडम ब्लावत्स्की यांनी मिस्टर सिनेट व डॉक्टर ॲना किंग्सफोर्ड यांची शाळेतल्या मुलांप्रमाणे कशी खरडपट्टी काढली आणि त्यांना हस्तांदोलन करावयास लावले, ह्या उल्लेखनीय प्रसंगाचे CW लेडबीटर साक्षीदार झाले. HPB यांनी किंग्सफोर्ड यांना हर्मेटिक लॉज काढावयास लावले. तिथे त्यांचा विचार चालेल असं त्यांना सांगितलं. आधीच फार कमी सभासदांचा त्यांना सपोर्ट होता आणि काही काळातच ते लॉज नामशेष झाले. कर्नल ऑलकॉट यांच्यासोबत HPB सिनेट यांच्या घरी गेल्या. तिथे त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या सभा हाताळण्यावर असमाधान व्यक्त केले.
CWL यांची ओळख करून देण्यात आली. त्यांनी त्यांच्या आधीच्या धाडसी कृतीबद्दल त्यांचे कौतुक केले. कारण मॅडम ब्लावत्स्की यांना CWL यांची ओळख करून देण्यात आल्यानंतर त्यांच्याबद्दल सांगण्यात आले की त्यांनी कशा कशा पद्धतीने थिओसॉफी मध्ये प्रवेश घेतला, त्यांनी त्यासाठी काय केलं, त्यांना महात्म्यांना भेटण्याची ओढ असल्यामुळे, त्यांचा शिष्य होण्याची ओढ असल्यामुळे त्यांनी कसे पत्रव्यवहार केले, एग्लिंटन यांची कशी मदत घेतली, त्यानंतर महात्म्यांबद्दल त्यांना कशी उत्तरं आली वगैरे, हे सगळं त्यांना सांगण्यात आल्यानंतर त्यांनी त्यांचं खूप कौतुक केलं. या त्यांच्या अचानक भेटीमुळे त्यांच्या सभांना हजेरी लावण्याच्या कुतूहलात इंधन ओतले गेले. म्हणजे CW लेडबीटर यांना आधीच त्यांच्याबद्दल कुतूहल होतच, आणि अचानक यांची इथे भेट झाली लंडन लॉजला, आणि ते त्यांच्या व्यक्तिमत्वाने भारावून गेले. आणि मग जेव्हा त्या तिथे असताना ज्या काही सभा वगैरे घेत, तर ते आवर्जून त्या सभांना हजेरी लावत. आणि ज्या ठिकाणी HP ब्लावत्स्की असत तिथे त्यांना सुरुवातीला संकोच वाटायचा, पण तरी सुद्धा ते तिथे राहून त्यांची मीटिंग वगैरे अटेंड करायचे. आणि अशा प्रकारे त्यांचं आणि CW लेडबीटर यांची ही अशी भेट झाली की त्यांना हे लक्षात आलं की जे HPBच्या सहवासात आले त्यांच्यावर मॅडम ब्लावत्स्की यांचा खूप प्रभाव पडतो. आणि मग ते त्यानंतर HPB बद्दल पुढच्या चॅप्टर मध्ये त्यांची काय माहिती सांगतात हे आपण आता पुढच्या भागात बघूयात. धन्यवाद. थैंक यू मृणाल जी, बहुत ही वंडरफुल आपने स्लाइड बाय स्लाइड इसको किया, थैंक यू सो मच. और पूनम जी आपका कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, वीडियो. नमस्ते. नमस्कार नमस्कार. हाँ वाह, यहाँ है, मोस्ट वेलकम. और आपके साथ एक परिस्थिति हुई कि आपका मोबाइल घूम गया, फिर भी आप लास्ट मोमेंट पे तैयार हैं, तो आपका स्वागत है. एक छोटा सा आपका परिचय देना चाहूँगा. पूनम उपाध्याय जी होलिस्टिक लाइफस्टाइल और गर्भ संस्कार की कोच हैं, और डाइटिशियन हैं, नेचुरोपैथ हैं, और सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर हैं, और साथ ही में योगा और मेडिटेशन के एक्सपर्ट भी हैं. वे यहाँ मुंबई में ही घाटकोपर लॉ से संबंधित रखती हैं. और ये जो विषय है हाउ थियोसॉफी केम टू मी, ये किताब का जो कंटिन्यूस आप दो चैप्टर करेंगे, उसमें शी इज़ वन ऑफ द रेगुलर टीम मेंबर्स. उन्होंने अपना एक तथास्तु होलिस्टिक सेंटर शुरू किया है, जहाँ वो लोगों को हीलिंग कर देती हैं, और साथ ही वो बॉडी माइंड इमोशंस और पूरा एक कम्युनिटी बनाना चाहती हैं, जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो सके. और वो वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती है, कल्चरल अपलिफ्टमेंट पर काम करती हैं, और सस्टेनेबल लिविंग भी उनके उस विषय में है, जिसके बारे में हम किसी दिन त्रिवेणी में ही उनसे जानेंगे. वर्तमान में आप प्लीज़ हिंदी में अपना पार्ट अदा कीजिए, और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा मैं स्लाइड भी रखता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद. और एक्चुअली आपकी सहायता से वो हो पाया, इतने शॉर्ट टाइम में आपने भेजा. तो आज मेरा जो है ये तीसरा और चौथा जो चैप्टर है, हाउ थियोसॉफी केम टू माय लाइफ, उसका हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में संवाद. तो जिस तरह हमने देखा बाकी स्पीकर का, तो आज हिंदी में समझते हैं. तो व्यवहारिक कार्य. थियोसॉफी के मुख्य सिद्धांतों को समझने के बाद उनके मन में थियोसॉफी के व्यवहारिक कार्यों में योगदान देने की इच्छा हुई. दुनिया भर से थियोसॉफी के बारे में पूछताछ के अभिभूत श्री सिनेट के परामर्श करते समय उन्होंने इस पत्र का जवाब देने की जिम्मेदारी की पेशकश की गई. प्रारंभिक आपत्तियों के बावजूद श्री सिनेट ने CWL को आश्वासन दिया कि बड़े पैमाने पर में भाग लेने के कारण इस कार्य को स्वीकार करता है और समर्पण के साथ बड़ी मात्रा में पत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण और उत्तर प्रदान करता है. उन्होंने कई प्रकार के प्रश्नों को निपटाया जो आसान से लेकर कठिन तक भिन्न थे. अक्सर पूछताछकर्ता की गलत
गलतफहमियों के कारण लंबे स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती थी। उन्होंने इस पूछताछ को संबंधित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास समर्पित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई उत्तर प्राप्त हुए, जिसमें कई महीनों तक उनका अधिकांश खाली समय व्यतीत हुआ। श्रम साध्य मैनुअल लेखक प्रक्रिया के बावजूद इस प्रयास के परिणाम स्वरूप सोसाइटी में नए सदस्यों को आकर्षित किया गया और दूसरों के सिद्धांत सिखाने के अनुभव के माध्यम से थियोसॉफी का ज्ञान विस्तार किया गया। अब डॉक्टर किंग्सफोर्ड के बारे में आगे हम समझते हैं। थियोसॉफी की शिक्षकों के संबंधित में लॉज के अध्यक्ष श्री अन्ना किंग्सफोर्ड और श्री सिनेट के बीच अलग अलग दृष्टिकोण के कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी के लंदन लॉज के भीतर तनाव की अवधि थी। डॉक्टर किंग्सफोर्ड के विचार पिछले जन्म व्यक्तिगत स्मृतियों से प्राप्त हुए हैं। एक समूह के भीतर शिक्षकों के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण अंतर श्री सिनेट के शिक्षण के ओरिएंटल रूप और डॉक्टर अन्ना किंग्सफोर्ड के हेर्मेटिक प्रतिपेक्ष के बीच अंतर को उजागर करता है। आवश्यक बात पर सहमत होने के बावजूद उनकी शिक्षाओं में बहुत अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया, प्रत्येक की अपनी अनूठी शब्दावली के साथ। बैठकों में श्री सिनेट शुरू में अपने विचार प्रस्तुत करते थे, लेकिन डॉक्टर किंग्सफोर्ड ने किसी भी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अपनी दृष्टिकोण से जानकारी का पूर्णावस्था करने पर जोर दिया। अधिकांश सदस्यों ने ओरिएंटल दृष्टिकोण को हेर्मेटिक की तुलना से अधिक समझने में योग्य पाया, जिसने उन्हें डॉक्टर किंग्सफोर्ड द्वारा पेश की गई अनावश्यक जटिलताओं के कारण निराश हुई। श्री सिनेट की दृष्टिकोण और उनकी शिक्षाओं को पीछे के मास्टर्स की उनकी लंबी व्याख्याओं और आलोचनाओं के सदस्यों के बीच आधिरता और नाराजगी की तीव्र भावना पैदा हो गई। एक बार डॉक्टर किंग्सफोर्ड के पेपर के कारण लॉज में बड़ी असहमति हो गई, जिससे तनाव पैदा हो गया। उन्होंने दोनों पक्षों पर बहस करने के लिए पर्चे भी प्रकाशित किए और यह बहस इतनी बढ़ गई कि इससे भारत के लोग भी शामिल हो गए। जब कर्नल ऑलकॉट और श्री मोहन चैटर्जी भारत से आए, तब लॉज दो समूह में विभाजित हो गया था, जिसमें केवल कुछ ही लोग डॉक्टर किंग्सफोर्ड का समर्थन कर रहे थे। मैडम ब्लेवेट्स्की, जो इस मुद्दे को हल कर सकती थी, पेरिस में इतनी बीमार थी कि मदद करना संभव नहीं था। वित्तीय वर्ष के अंत में लॉज को एक नया राष्ट्रपति का चुनाव करना था। अगले लॉज अध्यक्ष के चुनाव में अधिकांश सदस्य चाहते थे कि श्री सिनेट उनका नेतृत्व करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वे डॉक्टर किंग्सफोर्ड के साथ अपने व्यक्तिगत मुद्दों को लॉज की राजनीति में नहीं मिलाना चाहते थे। चुनाव की रात श्री मैटलैंड और डॉक्टर किंग्सफोर्ड को फिर से नियुक्त करने का प्रयास समर्थन की कमी के कारण विफल रहा, जिससे उन्हें स्पष्ट निराशा हुई। श्री सिनेट ने एक उम्मीदवार के रूप में जब श्री फिंग, एक सम्मानित बैरिस्टर और कैम्ब्रिज के पूर्व वरिष्ठ रेगलर का सुझाव दिया। अंततः श्री जी.बी. फिंग को अध्यक्ष चुना गया और श्री सिनेट सचिव बने। डॉक्टर किंग्सफोर्ड चुनाव परिणामों से नाखुश थे और बार बार बैठक में बाधा डालते थे, जो पहले से ही प्रगति के लिए संघर्ष कर रही थी। बैठक में अध्यक्षता कर रही थी। अध्यक्ष
संस्थापक अनिश्चित लग रही थी कि उस अपने व्यवधाओं को कैसे संभाला जाए। बैठक एक लंबे कमरे में हुई, जिससे उपस्थित लोग अस्थायी रूप से किराए की बेची हुई बेचों पर बैठे थे। CWL और उनके मित्र मिस्टर वर्ली देर से पहुंचे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर प्रवेश द्वार पर बैठ गए, जबकि कर्नल ऑलकिट और मोहिनी ने बैठक के साथ चर्चा की ओर ले जाने का प्रयास किया। स्थिति अचानक बदल गई जब काले कपड़े में एक मोटी महिला मैडम ब्लावत्स्की ने कमरे में प्रवेश किया और खुद बैठ गई, जिससे कार्यवाही में एक अप्रत्यक्ष मोड़ आ गया। मैं हमारे संस्थापक को मिला। मैडम ब्लावत्स्की, जो पहले कभी नहीं दिखाई गई थी, लंदन लॉज में एक शोर शराबे भरी बैठक में अचानक प्रवेश कर गई और चल रहे विवाद पर अधीरता व्यक्त की। उससे मोहिनी का आदेश आया और प्रतिष्ठित मोहिनी अपने पास दौड़ी। मोहिनी तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के फर्श पर मुंह के बल गिर गई और काले कपड़े वाली महिला के पैरों पर लेट गई। इस अप्रत्याशित घटना ने कई लोगों को भ्रमित कर दिया। मिस्टर सिनेट फिर जल्दी से बाहर गए, शब्दों का आदान प्रदान किया और लौटकर जोरदार आवाज में घोषणा की, मुझे लंदन लॉज में समग्र रूप से परिचित कराने दीजिए मैडम ब्लावत्स्की को। दृश्य अस्त व्यस्त था और उसका वर्णन करना कठिन था। श्रद्धेय संस्थापक के चारों ओर एकत्र होकर सदस्य अत्यधिक प्रसन्न और आंशिक रूप से आश्चर्यचकित थे। कुछ ने उनके हाथ को चूमा, कुछ ने उनके सामने घुटने टेक दिए और कुछ ने के आंखों से आंसू बह निकले। कुछ मिनटों के बाद उनके अधीरता से उन्हें एक तरफ कर दिया और कर्नल ऑलकोट द्वारा उन्हें मंच तक ले जाया गया। वहां उन्होंने बैठक की असंतोषजनक प्रकृति के बारे से उनको स्पष्टीकरण मांगते हुए पहले कुछ सवालों का जवाब दिया, जिससे वह अचानक शामिल हो गई। कर्नल ऑलकोट और श्री सिनेट ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने तुरंत बैठक बंद करने का आदेश दिया और अधिकारियों को तुरंत सम्मेलन में मिलने को बुलाया। सदस्य उत्साह की स्थिति में चले गए, जबकि अधिकारी पास में एक कमरे में मैडम ब्लावत्स्की के साथ मिले। स्थिति और श्री सिनेट के घर में रहकर CWL की एक उल्लेखनीय दृश्य देखा, जो मैडम ब्लावत्स्की ने लॉज की स्थिति और श्री सिनेट और डॉक्टर किंग्सफोर्ड के बीच असहमति के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। विवरण प्राप्त करने पर उन्होंने मिस्टर सिनेट और डॉक्टर किंग्सफोर्ड को ऐसे डांटा जैसे वे स्कूली बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हों। हैरानी की बात यह है कि फिर उन्होंने सबके सामने उनसे हाथ मिलाया, यह संकेत देने के लिए कि उनके मतभेद सुलझ गए। उन्होंने डॉक्टर किंग्सफोर्ड को अपना दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए हेर्मिटेज लॉज बनाने का निर्देश दिया। हालांकि बाद में यह कम हो गया। मैडम ब्लावत्स्की कर्नल ऑलकोट के साथ बैठक में अधिकारियों को संचालन पर असंतोष व्यक्त करते हुए डॉक्टर सिनेट के घर गई। CWL का उनका परिचय हुआ। श्री सिनेट ने आर्निश द्वारा अपनी गुरुओं की जिम्मेदारियों को अस्वीकार करने के संबंध में आत्मवादी पत्रिका लाइट को लिखा। अपने पत्र को उल्लेख किया। यह सुनकर मैडम ब्लावत्स्की ने CWL की जांच की और एक टिप्पणी की, मैं पादरी वर्ग के बारे में ज्यादा नहीं सोचती, क्योंकि मैं उनसे अधिकांश को
पाखंडी, कट्टर और मूर्ख पाती हूँ, लेकिन वह एक साहसी कार्रवाई थी और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। आपने अच्छी शुरुआत की है, शायद आप अभी भी कुछ कर सकते हैं। इस मुलाकात में शर्मिलेपन के बावजूद उन बैठक में भाग लेने की उनकी उत्सुकता को बढ़ा दिया, जैसे कि मैडम ब्लावेट्स्की मौजूद थी। उनके निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के बीच उनके द्वारा जगाए गए गहरे प्रभाव और स्नेह पर जोर दिया गया। उन्हें लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को जब इनका महत्व से अवगत कराना उनका कर्तव्य है, जिन्हें यह व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर नहीं मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। और वाकई में आपने बहुत कमाल किया है। जिस तरह की तकलीफ आई थी मैं एंड में बताऊंगा। चित्रा जी, प्लीज गो अहेड विथ योर सेकंड हाफ इन इंग्लिश। थैंक यू। Okay. Okay, so the next chapter is like about Madame Blavatsky. Previously, C.W. Leadbeater wanted to tell the future generation how she was, what kind of person. So he dedicated this full chapter to tell about what kind of person, what people have understood about her, and what she is actually. So actually, said C.W. Leadbeater had a deep love and a kind of respect, reverence for Madame Blavatsky. He had encountered few things, okay, and Blavatsky elicited strong reactions from those who, and so whatever influence she used to have, it was very strong. She, while some didn't like her, they were little against her, and some really loved her teachings, and they were enthusiastic and they followed her. Some were similar to her, however, they hated them. Some created a kind of a great impression. She had a great impression on them, and some whatever she did is like a kind of unwavering affection for her. They loved it. So her sentiment persisted on this day. Her impact was hard for him even to describe. What she could see is she could see the people through. I have given the picture of wall because I didn't get people through to see through. So she could see people through what they are actually, though they look different, what they are actually. This used to reveal lots of truths about that people. So it was not happy for everyone. So some truths were unexpected truths, she used to say. So people had a kind of thinking that she was straightforward and she was very powerful and all. People were thinking maybe she is a kind of a spy. So C.W. at Leadbeater says this is completely opposite. She can never be a spy because she cannot keep anything much secretive. She just says it very straightforward without hiding. She doesn't mind what they can go through or something. She just says it. So she doesn't know how to decode or try to modify it and tell in a sweet way. No, she was not like that. She was outspoken nature and she cannot maintain the deceptions. So she was very genuine in her character. This was very different from usual spies, how they will be. And there were few acquisitions. So he says whoever have seen her directly, they would haven't have spoken about her like that. So whoever have spoken in a different way, what she was not, that is only from outside. They really don't know. That is what he wanted to explain. She was a very good conversation person. So she used to start the conversation, and she was very good in it. And her knowledge was in all kind of diverse subject she had. So that is she was very brilliant, is what C.W. Leadbeater says. And when she starts talking, she was not like an ordinary person. She offered all fresh, unconventional insights, means her own perspectives, very interesting. She traveled many places, very rare, less known regions also she had, and she made lots of wealthy memories, experience in different places. When she starts speaking, she could catch the audience
like that. And sometimes she used to give an kind of anecdotes, so that used to give a overall message to the people. She was also humorous. She was a kind of a truly remarkable individual, is what he says. But though her conversations were different and all, through intimate conversation, through kind of sitting with her and proper talking, uh, one can discover Madame Blavatsky's profound devotion. When they deeply talk to her, they can understand how much she has a devotion to her masters. That is, this picture I got it from internet, which was taken in Adyar. So this picture has Kutumi master, then here Kutumi master and Maurya. So it says that the great soul Madame Blavatsky and the three masters with whom she worked to found the Theosophical Society. These great ones are shown as they appeared um, in, in their physical at that time. So left to right, they are Lord Kutumi, then Lord Maurya, and Saint Germain. So I am not sure about who is this, but so these three masters were involved in it. So she can, when the people talk with her, they can understand how much devotion she has, and she completely focused on them. She had a funny way of telling, making humorous situations, but when she speaks to the masters, she had a different view. So how she looks and how she is actually from inside is completely different. So while she occasionally joked about subjects others deemed sacred, it seemed from her straightforward nature. So usually she's straightforward, and they say that she's lovely, sweet, and all. Little contrasting though. So it is. She didn't like people if they are insincere or pretense. They pretend as if they are good. Something she could identify. She can see through the people, right? So she didn't like all such things. Madam she had empty-mindedness when she speaks to people. Uh, she didn't like the superficial displays of respect, showing respect in a superficial way. She never liked it. Then, so Madame Blavatsky, there was a kind of a middle class values, be good kind of things. Those things were not her cup of tea. Like she didn't like all these things because she feels that as a fake, like respect, all this way of behavior she didn't like. That is my perspective after reading it, what I felt. So she often pointed out this insincerity which could make people uncomfortable. Okay, so if some work is given, they are not sincere, this will actually create a kind of uncomfortable people. This directness, she will tell directly, didn't fit the usual idea of showing the respect. See, when she is showing respect and also she's straightforward, obviously it contradicts. But when she asked about the master, she showed a kind of love, deep love, respect, obviously trust I added. Her dedication to him was very clear. Even though she wasn't usually formal in a formal way, her strong trust and love for her master were moving to witness so that they could see. So finally, like, she was a loving person, she had a deep love, she was straightforward, she was not pretending, she was very sincere, she can see through the people, she could reveal what they are actually. And such, that was, though she was bold, strong, powerful, her impact was a kind of strong. That is what we felt. So after seeing all this, Madam Blavatsky impact was also there on Theosophical Society. She gets the credit for the society. So CW at LEADBEATER says that we should never forget her work for Theosophical Society, her things. She never wanted people to be always with behind her, do whatever she said. She doesn't want everyone to follow her books or some. She never insisted that follow me, whatever I say. She was not like that. She just had whatever master says she did. So in this dedication, this kind of a gratitude from the people, and they started celebrating a day called Lotus Day. This fall gratitude and remembrance on White Lotus Day to study her books and all. Though
she did not ask her own book should be read, but she did ask something should be read from Bhagavad Gita and the Light of Asia. So these books, that is always done in every Theosophical lodge, even now. So then he says that I hope, this is the actual words I have taken, I hope that it will always will be, and that we shall never allow the memory of our founder to pass from our minds. I should like you to realize the fact and to keep it ever in your minds that all that we have and all that we have learned through whatever form it may now be coming to us, we really owe to Madame Blavatsky. This I took the actual statements, what he wanted to mean to the world. So he had a great love for her and respect, and so I can say in his book he has dedicated one chapter for her only. So with this, the second part also I have finished. Sure. Thank you. Thank you, Chaitra ji. Thank you. And we'll now go to the other parts, another speaker. Just a minute. Yes, MRINAL ji, your. Yes. I think you're. थँक यू चैत्रा जी. Yeah, thank you, ma'am. आता आपण दुसरा भाग बघणार आहोत की ज्यात CW लेडबीटर यांनी मॅडम ब्लावत्स्की कशा होत्या त्यांचं वर्णन केलेलं आहे. ते म्हणतात, जे त्यांच्या सहवासात आले त्यांच्यावर मॅडम ब्लावत्स्की यांचा खूप प्रभाव पडला. मॅडम ब्लावत्स्की यांना प्रत्यक्ष भेटण्याचा त्यांचा प्रेमळपणा, विलक्षण उत्साह याचा अनुभव CW लेडबीटर व त्यावेळेस जे इतर होते त्यांना घेण्याची सोन्याची संधी मिळाली. ते म्हणतात की त्या कशा होत्या हे इतर लहान बांधवांना, पुढच्या पिढीला सांगणे त्यांचे कर्तव्य आहे. CW लेडबीटर यांना त्यांच्या प्रती गाढ प्रेम व आदर होता. आगंतुकाच्या दृष्टीने सांगायचे तर त्यांच्या प्रचंड सामर्थ्याची चमक पहिल्याच भेटीत समोरच्याला झळाळून टाके. त्यांच्या शिकवणुकीबद्दल निरनिराळी मतमतांतरे असो, पण प्रत्येक व्यक्ती त्यांच्या उपस्थितीत मुळातूनच प्रभावित होत असे. HP ब्लावत्स्की यांच्यामध्ये अनेक आदर्श गुण होते, जसे की त्या जबरदस्त सामर्थ्यवान होत्या, कोणत्याही साहसाला न कचरणाऱ्या, स्पष्ट वक्त्या आणि प्रांजळ होत्या. त्यांनी फसवणूक केल्याचे त्यांच्यावर आरोप केले गेले. ते सर्व CW लेडबीटर यांनी फेटाळून लावले आणि दावा केला की हे सर्व आरोप करणाऱ्यांना HP ब्लावत्स्की यांचे व्यक्तिमत्व कळलेच नाही. त्यांच्यावर त्या गुप्तहेर असण्याचा सुद्धा आरोप झाला होता. पण ज्या प्रकारे त्यांची स्पष्ट वक्तेपणाची किंवा बोलण्याची पद्धत होती, त्यावरून त्या कुठलीही गोष्ट गुप्त ठेवू शकतील असा त्यांचा स्वभाव नव्हता. त्यामुळे त्या गुप्तहेर असण्याचा कधी प्रश्नच येत नाही. त्यांच्यावर असा आरोप होणं फारच निरर्थक आहे असं CW लेडबीटर यांनी मांडलेलं आहे. आणि मॅडम ब्लावत्स्की ह्या खूप जगभर फिरलेल्या होत्या. त्यांनी जगभर फिरून वेगवेगळ्या ठिकाणहून खूप अनुभव गोळा केले होते. आणि CW लेडबीटर यांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल जोरकसपणे वर्णन करतात की त्यांना विविध विषयांचे सखोल ज्ञान होते व त्या अतिशय संभाषण चतुर होत्या. कारण त्यांच्याकडे इतका माहितीचा साठा होता आणि त्या ठिकठिकाणी फिरून त्यांनी वेगवेगळी माहिती किंवा त्यांनी वेगवेगळ्या सिद्धी प्राप्त केल्या होत्या. इन द केव्ज ऑफ इन इंडिया त्यांनी केव्ज आणि जंगलांमध्ये फिरून वेगवेगळ्या मांत्रिक तांत्रिकांना सुद्धा भेट घेऊन त्यांच्याकडून विविध सिद्धी प्राप्त करून घेतल्या होत्या. आणि त्यांच्याकडे ज्या गोष्टी होत्या त्या इतक्या रंजक होत्या की त्यांना ती कथाकार म्हणून हातोटी होती की एखादी गोष्ट रंगवून कशी सांगावी. आणि त्यांच्यात विनोदी स्वभाव असल्यामुळे गोष्ट रंगवून सांगणे, विनोदाची त्याला फोडणी देणे, अशा प्रकारे त्या अशी अतिशय समोरचा श्रोत्याला गुंगवून ठेवायच्या. CW लेडबीटर यांनी नमूद केले की मॅडम ब्लावत्स्की यांना महात्म्यांविषयी अपार भक्तिभाव, आदर व प्रेम होते.
काही सामाजिक नियमांबद्दल त्यांना आदर नव्हता. ही गोष्ट त्यांची वास्तविकता व सत्यता दर्शवते. कारण आपण बरेच गोष्टी बघतो समाजामध्ये की ज्या रूढी परंपरा चाललेल्या असतात, तर त्या आपल्या थिओसॉफीच्या दृष्टीने विचार केल्यास काही भंपकपणा असतो त्याच्यामध्ये, तर त्या आपण अमान्य केल्या पाहिजेत. पण मग काहींमध्ये तेवढं धारिष्ट्य नसतं की त्या रीतिरिवाजांना झुगारून लावून आपण जे काही सत्य आहे त्याचा पाठपुरावा करणं हे प्रत्येकाच्यात नसतं. ते धाडस मॅडम ब्लावत्स्की यांच्यामध्ये होतं. आणि वरकरणी जरी त्या अशा कडक किंवा अशा वाटल्या तरी त्या खूप प्रेमळ होत्या. आपल्या संस्कृतमध्ये एक श्लोक आहे की वज्रादपी कठोर आणि मृदुनी कुसुमादपी. म्हणजे काही थोर पुरुष असे असतात की ते वज्रापेक्षाही कठोर वाटतात, पण प्रसंगी ते वज्रापेक्षा कठोर वागले तरी एखाद्या प्रसंगी ते फुलापेक्षाही कोमलतेने वागू शकतात. तर असं हे मॅडम ब्लावत्स्की यांचं व्यक्तिमत्व होतं. आणि काही सामाजिक नियमांबद्दल त्यांना आदर नव्हता, तर ती त्यांनी गोष्ट तर जगजाहीर केलीच होती. CW लेडबीटर यांच्या वैयक्तिक अनुभवांच्या आधारे मॅडम विरुद्ध फसवणूक आणि फसवणुकींच्या आरोपांना ते आव्हान देतात. कारण त्यांनी प्रत्यक्ष मॅडमना बघितलं होतं, त्यांच्या सहवासात राहिले होते, त्यांचा अनुभव घेतला होता. त्यामुळे मॅडम ब्लावत्स्की कशा आहेत, काय आहेत हे त्यांनी नीट त्यांचं निरीक्षण करून त्यातनं त्यांना कळलं होतं की मॅडम ब्लावत्स्की या खूपच थोर आहेत, त्या कधीही फसवणूक करू शकत नाहीत किंवा त्या गुप्तहेर पण राहूच शकत नाहीत, असा त्यांचा स्वभाव आहे. आणि मग थिओसॉफिकल सोसायटी जी मॅडम ब्लावत्स्की यांनी स्थापन केली त्याच्यावर त्यांचा खूपच प्रभाव होता. म्हणजे नक्कीच त्यांना सोसायटीच्या अस्तित्वाचे आणि थिओसॉफिकल शिकवणुकींच्या प्रसाराचे श्रेय मिळते. मग CW लेडबीटर यांना वाटतं की जो आपण व्हाईट लोटस डे निमित्त त्यांचं जे सादरीकरण करतो, तर त्यानिमित्त त्यांचं स्मरण करावं आणि त्यांनी आपल्याला जे काही दिलेलं आहे थिओसॉफिकल सोसायटी फाउंड करून त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करावी. आणि त्यांनी कधीही मॅडम ब्लावत्स्की यांनी असं सांगितलं नाही की त्यांची पुस्तके वाचा, त्यांची शिकवणूक फॉलो करा किंवा त्यांच्यावर बोलावं एखाद्या सभासदांनी वगैरे, असं त्यांची कधीच अपेक्षा नव्हती. त्यापेक्षा त्यांनी भगवद्गीता किंवा लाईट ऑफ एशिया यातील काही उतारे वाचावेत वगैरे असं त्यांनी सांगितलं होतं. तर इतक्या त्या आणि बाकी इतर जे लोक होते, आपण ऑलकॉट यांच्याबद्दल पण असं बोलू शकतो. इतर जे काही पहिल्या फळीतली जी काही लोक होती थिओसॉफीतली, ही सगळी अतिशय निस्वार्थीपणाने त्यांनी थिओसॉफीची स्थापना केली, त्याचं कार्य केलं. आणि ती धुरा मग पुढे CW लेडबीटर आणि अॅनिबेसंट यांच्यावर त्यांनी सोपवली. तर व्हाईट लोटस डे निमित्त सर्वांनी त्यांचे स्मरण करावे व कृतज्ञता व्यक्त करावी. तसेच अशी विनंती ते करतात की त्यांच्या अनुयायांनी त्यांच्या शिकवणुकींचा अभ्यास करावा आणि जीवनात त्याचा अवलंब करावा. तर हीच खरी त्यांच्या प्रती आपली कृतज्ञता ठरेल, असं CW लेडबीटर म्हणतात. इथेच मी माझ्या दुसऱ्या भागाचं समाप्ती करते. धन्यवाद. सर आप म्यूट हैं। बहुत धन्यवाद मृणाल जी। और अब पूनम जी आप अपना भाग 2 अंतिम पड़ाव है हिंदी में वो कहें। धन्यवाद जी। तो अभी चौथे चैप्टर पे चलेंगे हम लोग हिंदी में। मराठी और इंग्लिश का हो चुका है और बहुत ही अच्छे स्पीकर्स हैं। तो देखते हैं चौथा चैप्टर हमें क्या बताता है। CWL जी के मन में मैडम ब्लावत्स्की के प्रति गहरी प्रेम और श्रद्धा थी। मैडम ब्लावत्स्की को उन लोगों से तीखी प्रक्रिया मिली जिन्होंने उनका सामना किया। जहां कुछ लोग ऐसे विचारों से पूरी तरह असहमत थे, वहीं कुछ अन्य लोग ने उत्साह के साथ उनका अनुसरण किया। उनके चरित्र की ताकत ऐसी थी कि कुछ लोग उनके प्रति उदासीन रहे, कुछ के मन में तीव्र घृणा भी थी, जबकि अन्य उनकी उपस्थिति में बहुत प्रभावित और आश्चर्यचकित थे।
हालांकि जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके मन में उनके प्रति अटूट स्नेह था। यह भावना आज भी कायम है। इसका प्रभाव गहरा था और इसका वर्णन करना कठिन था। उनके पास लोगों के माध्यम से देखने और अप्रत्यक्षिक सत्य प्रकट करने की क्षमता थी, जो लोगों को परेशान कर सकती थी, जिनके साथ उन्होंने बातचीत की थी। उनकी शिक्षाओं के बारे में अलग अलग राय होने के बावजूद उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति उनकी उपस्थिति में गहराई से प्रभावित होते। मैडम ब्लावत्स्की के जबरदस्त शक्ति की भावना, निडर साहस, स्पष्टवादिता और सीधापन उल्लेखनीय गुण था। इसके अतिरिक्त वे इन दावों को खारिज करती थी कि वह एक रूसी जासूस थी, क्योंकि उनकी मखर स्वभाव और धोखे के बनाए रखने में असमर्थता के कारण वह इस तरह की भूमिकाओं के लिए अनुपयुक्त थी। मैडम ब्लावत्स्की का वास्तविक चरित्र एक परिभाषित गुण था, जो उन्हें धोखे के आरोप से अलग करता था। उन्होंने उनके खिलाफ धोखे के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जिन लोगों ने ऐसा दावा किया है, वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से कभी जानते ही नहीं थे। WN ने जब उनकी प्रतिभा पर जोर देते हुए उन्हें विविध विषयों का व्यापक ज्ञान के साथ एक असाधारण बातचीत करने वाला बताया। मैडम ब्लावत्स्की कभी भी साधारण नहीं थी। वे लगातार ताजा, दिलचस्प और अपरंपरागत अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी। कम ज्ञात क्षेत्रों में उनकी व्यापक यात्राएं ने उन्हें कई यादगार अनुभवों से सुसज्जित किया था, जिन्हें उन्हें विस्तार से याद किया। एक कुशल कहानीकार, उन्होंने सहता अपने दर्शकों को शानदार उपासंख्यों से मंत्र मुक्त कर दिया और अपने संदेशों को प्रभावी ढंग से व्यक्तिगत किया। इस पहलू में कई अन्य लोगों की तरह वह वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति के रूप में सामने आई। अंतरंग बातचीत के मध्य में मैडम ब्लावत्स्की को अपनी गुण के प्रति गहन भक्ति का पता चलता है, जो उनके जीवन का केंद्र बिंदु था। स्थितियों में हास्य खोजने की उनकी प्रवृत्ति के बावजूद उन्होंने अपनी गुरु के बारे में श्रद्धापूर्व सुंदरता के साथ बात की, जो उनके सामान्य बाहरी व्यवहार से विपरीत था। हालांकि वह कभी-कभी उन विषयों के बारे में मजाक करती थी जिन्हें दूसरे लोग पवित्र समझते थे। यह उनके सीधे स्वभाव से उपजा था, जहां उन्हें कपट या दिखावा पसंद नहीं था। मैडम ब्लावत्स्की की श्रद्धा वास्तविक थी, सम्मानीयता से सहती प्रदर्शनी से जुड़ी, खाली मानसिकता से रहित। मैडम ब्लावत्स्की के मध्यवर्गीय मूल्यों के अनुरूप होने का विचार उन्हें नापसंद था, क्योंकि वह इसे नकली मानती थी। वह अक्सर इस जिद की ओर इशारा करती थी जिससे लोग असहज हो सकते हैं। वह सीधापन, सम्मान देखती थी और सामान्य विचार में फिट नहीं बैठता। लेकिन जब उन्हें अपने गुरु के बारे में बात की, तब उन्हें उसमें गहरा प्यार और सम्मान दिखाई दिया। उनके प्रति उनका समर्पण स्पष्ट था। हालांकि वह आमतौर पर औपचारिक नहीं था, लेकिन अपने गुरु के प्रति उनका दृढ़ विश्वास और प्यार गवाही देने वाला और लोगों को प्रेरित कर रहा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी पर मैडम ब्लावत्स्की के प्रभाव पर जोर दिया गया। उन्हें सोसाइटी के अस्तित्व और थियोसॉफिकल शिक्षाओं के प्रसार का श्रेय दिया जाता है।
यह व्हाइट लाइट डे पर कृतज्ञता और स्मरण का आवाहन अनुयायियों के साथ अपनी शिक्षाओं का अध्ययन जारी रखना, उन्हें अपने जीवन में लागू करने का आग्रह है। और उन्होंने यह नहीं पूछा कि आपने कितनी किताब पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने यह पूछा कि कुछ लोग होने चाहिए जो भगवत गीता और लाइट ऑफ एशिया से पढ़े, जो हम हमेशा हर थियोसॉफिकल में जाते हैं, आज भी कायम है। और उनके जो शब्द है, मुझे आशा है कि यह हमेशा रहेंगे और हम अपनी स्मृतियों को कभी भी अनुमति नहीं देंगे संस्थापक हमारे दिमाग से निकल जाए। मैं चाहती हूँ कि आप तथ्य को समझे और इसे हमेशा ही अपने दिमाग में रखें। वह सब कुछ जो हमारे पास है और जो कुछ हमने सीखा है, अब वह किसी न किसी रूप में हमारे पास आ रहा है। वास्तव में यह मैडम ब्लावेस्की की ऋणी थी और हम ऋणी हैं उनके। धन्यवाद। Sir, I would like to say one more thing is, Madame Blavatsky was like accused, like she was writing her those letters which were coming from the masters. The people were thinking that she was writing herself and giving it to the people. But C.W. Leadbeater wanted to convey that though she was very far away places, still she used to somehow Episenet or C.W. Leadbeater, they used to get letters. So he wanted to tell this line. So I forgot to tell this. Sorry. No, it's all right. There are many things जो ये दोनों चैप्टर्स में 3 और 4 में हैं, और हो सकता है कि इसमें से कुछ 20-20 मिनट के इस अंतराल में छूट गया हो, लेकिन ये जरूर हमें प्रेरणा देता है कि हम वो किताब को पढ़ें और स्टडी करें। तो इसके साथ ही अगर और कोई स्पीकर मृणाल जी या पूनम जी कुछ ऐड करना चाहती हूँ तो करें, वरना मैं जो आसपास और कोई है उनको आवेदन करता हूँ कि वह आए। शिंदे जी थे, हर्षवर्धन भाई तो आ गए। शिंदे जी, वे अपना वीडियो चालू करेंगे अभी। सुषमा जी हैं, वो भी कुछ कहना चाहें, ऐड करना चाहें तो यही वक्त है। हमारे पास आज थोड़ा सा समय है क्योंकि चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया, और दोनों वक्ता भी जो ट्रांसलेशन कर रहे थे वो उसके ऊपर इतना सटीक रहे कि एक समय अवधि में सब कुछ खत्म हो पाया। तो आप लोग आमंत्रित है। वैसे मैं बता दूं कि पूनम जी ने एक बड़ा साहस का काम किया। उनका मोबाइल घूम गया कल सुबह, और वो कॉन्टेक्टेबल थी ही नहीं। सारा डाटा मोबाइल में था, जो भी आपका पीपीटी था वो सब था। तो हम लोगों ने तो आशा छोड़ दी थी कि वो शायद अब नहीं आ पाएंगी, इसलिए हमने हर्षवर्धन जी को बोला कि आप तैयार रहिएगा। लेकिन जैसे उन्होंने बोला मैं तैयार हूँ, पूनम जी का फोन आया एग्जैक्टली 6:30 पे कि आई एम अवेलेबल, प्लीज सेंड मी द स्क्रिप्ट एंड आई विल डू इट राइट नाउ। तो ये वाकई में उनको स्क्रिप्ट भेजी, और वो समांतर अनुवाद कर रही थी और अर्चना जी अपनी जगह से अनुवाद कर रही थी, और उन्होंने मुझे भेजी, मैंने उनको भेजी। ये सब पीछे चल रहा था जब तक कि फर्स्ट पार्ट चल रहा हो। तो ये भी ऐसे चैलेंज आ जाते हैं कई बार, लेकिन पूनम जी बहुत अच्छा रहा। आपने उसको इतने अल्प समय में, मतलब मुश्किल से 20 मिनट मिले होंगे उनको फर्स्ट हाफ के लिए, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और ये जो एक जुनून रहता है वही शायद हमें इस थियोसॉफी को बढ़ाने के लिए आएगा। जैसा आपने इसमें भी पढ़ा भाग चौथे में कि एक जुनून था सब लोगों में कुछ कर गुजरने का, इसीलिए शायद थियोसॉफी इतनी आगे बढ़कर आई। और हमें भी शायद, हम 150th ईयर की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास कम से कम 150 गुना जुनून होना चाहिए। Yes, Shinde ji, please go ahead, sir. I must congratulate all Poonam, MRINAL, and Chaitra, no? Yeah, Chaitra ji. Chaitra ji. Chaitra, yes, sir. All are so fluently and so naturally spoke. This is really Triveni.
Yes. So no translation. It was not translation, but whatever they have understood, they told in Marathi, in Hindi, and in English. Correct. Even Chaitra ji, very good English, very nice. Very nicely you explained, and I am happy to listen how Theosophy is growing in younger generation. Yes, sir. And as you pointed out, Chaitra, that is very quality of H.P. Blavatsky. She was completely impersonal. There was nothing personal to her. And whenever she is seeing, she is really seeing through, not at. Seeing at is personal, but seeing through is impersonal. That kind of quality was there in HPB. And therefore, she was always looking at soul, how much soul that grown. And she never thinking of personality, etc. And therefore, she was finding many faults in that personality also. And therefore, she was not able to control her emotions sometimes. And she was reacting also. But that reaction is for betterment of that soul. Actually, she was, what we can say, the balloon of ego was punctured by that kind of reaction. So whole air was gone. That is what she was doing. Really, you have explained very nicely, and that is what C.W. Leadbeater experienced himself, and how she was appearing. She was extraordinary. We can't explain her ability in this world. She was the only soul. She and H.S. Alcott, both of them were extraordinary souls selected by the masters. That is what in the Mahatma letters it is said. Among the whole humanity, only these two souls are really, really wonderful. One must study about them, contemplate about them, and all of you three did very well. Hindi, Marathi, English, all these very nicely explained. Everybody must have enjoyed this. Thank you very much, and nothing to do, only to congratulate you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Harshvardhan bhai, Yes. Really, I must congratulate Poonam because you just came over and my responsibility was, of course, that was there. But I felt very free at the time. And when Karanji told me, it becomes a kind of responsibility that pinches our mind, and we are very careful, like C.W. Leadbeater. This is the book. Really, Chaitra ji, you spoke very well, and with the plates, it becomes very easier for the listeners to have the glimpse of the different PPT programs and like that. So that is wonderful. And MRINAL also, you spoke in Marathi. I really followed you. Today is a wonderful thing. That is the beauty of Mrinal ji, that she speaks in Marathi, but somehow we understand everything. See, I was following the slides also. If I don't understand, how can I follow the slides? Really, it was very sweet. Yes, the Marathi language that comes to our ears, and that very comprehensible and very nice. So I was really happy. Main thing is this: this book really is very wonderful. It is about the hard work of CWL, how he had this theosophy in his life, and how he did the work, giving the answer to those hundreds and thousands of letters. Sometimes every day more than 200 letters. So difficult. And yes, and that went on for several days, and how somebody would have been tired of that. But here, Leadbeater sir had that notion to go deeper into the theosophic work and to have theosophy in his own life. So that is the main purpose. Secondly, here Mohini Mohan Chatterjee is a person, not a lady. So please please consider like that. Yes, maybe it's all right. But this Sindeji, I want to ask that there was a kind of struggle between kings, because here when we go deeper into the history, because I read several times and I had that understanding in the way that Dr. Ford
was a kind of hermetic lodge that he wanted to propagate at that time. Was that so? Mohini Chatterjee, he left the Theosophy later on. He left Theosophy, that is correct. And during the time of Epicenate, most of the people followed him, with devotion. Epicenate had that devotion towards Madame Blavatsky, and he also had this proper understanding about the theosophic work. Here, Kingsford seems to have a failure. So, in that way, sometimes in the London Lodge, this happened. And suddenly coming there in London Lodge, appearing there in the lodge, that is a kind of miraculous matter. Because Madame Blavatsky came there with the hubbub of all those two parties. And in that way, that was really a unique matter, yes, to make them understand. So this part is very important. उसको जानना सुनना इतना बड़ा गहराई से वहां पर उनका आना और इन लोगों को समझाना, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी में ये बातें होती है. देयर आर समटाइम्स टू थॉट्स इन द माइंड्स एंड उसमें हम किसी भी कॉम्प्रोमाइज पर नहीं आ सकते हैं. तो लोगों को इस तरह से समझाना बड़ी बात थी और तुरंत ही हाथ भी मिलाना, तुरंत ही उनको समझा देना, ये भी है. तो ये मैडम ब्लेवेट्स्की का कमाल था, ताकि उन्होंने वो भी बातें जानी कि मैडम ब्लेवेट्स्की को एक जासूस बताया गया, रशिया से आई हुई थी, और लीडबीटर साहब का उन पर जो डिवोशन था वो बहुत गहरा था. हम ये भी जानते हैं कि उनके यहाँ आने के बाद भी जो संघर्ष हुआ लीडबीटर साहब का, जो भी कृष्णमूर्ति के साथ, जो भी हमारा डॉक्टर बेसेंट के साथ उन्होंने जो काम किया और इस तरह से आगे वो बढ़े. लेकिन यहाँ पर मेन बात जो है, हाउ थियोसॉफी केम टू मी, दिस बुक इज रियली रिमार्केबल बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम in the early period when he was a clergyman, having the responsibility of the church and doing the work of the clergyman, that was a tedious thing for him. And here he got interest, he nurtured the interest, and he really penetrated the work of theosophy in a very fine way that he could have proper understanding. तो ये उनकी तपस्या थी, मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन साहब की तपस्या. J. Krishnamurti himself told that he was a very strict teacher. Yes, orderly in all form. जैसे हम इस किताब की गहराई में जा रहे हैं कि हाउ थियोसॉफी केम टू मी, कैसे आई ब्रह्म मेरे पास, मुझे लगता है कि शिंदे जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि हम किसी लोटस डे के दिन एक ऐसी प्रतियोगिता रखें हमारे ही मेंबर्स के बीच कि उनके पास थियोसॉफी किस तरह से आई. तो शायद बहुत सारे ऐसे अनुभव हमें मिलेंगे जो शायद हम इस एक किताब के भाग में पा भी नहीं सकेंगे, और नए अनुभव मिलेंगे कि आज की हालत में थियोसॉफी कैसे उनके पास है. Yes, this exercise must be done in every lodge. Yes, you must ask to every member why we have joined. Correct. And everybody has got his own history. हाँ, पर अगर वो लिख सके तो वो शायद हम उसको डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं. करेक्ट. यस सर. हमने एक गाथा जैसा बनाया है, जैसे कि ये ट्रियो बनता है ना, जैसे कोई भी 3 का एक तरह से एक ट्रियो बनता है. उसमें हमने देखा है कि मैडम ब्लेवेट्स्की, कर्नल ऑलकॉट, फिर उनके साथ जुड़ी हुई हमारी डॉक्टर बेसेंट, और फिर डॉक्टर बेसेंट, लीडबीटर सर, और फिर कृष्णमूर्ति. इस तरह से ये ट्रियो साथ चलता है. और ये मैंने तो सोचा कि इसको एक गाथा के रूप में एक इस तरह से कहा जाए, जैसे गाथा हम किसी को वर्णन करते हैं ना, एक पद्य में या पद्य में मिलाकर, जिसमें हमारे कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं, जिसमें हमारे कुछ गेय ऐसे पद भी आ जाते हैं, जो हम बता सके कि ये थियोसॉफी है, ये काम उन्होंने इस तरह से किया है, और उसमें एग्जाम्पल्स भी आते हैं. सब मैं एक एग्जाम्पल दे दूं कि द वेरी लिटिल काइंड ऑफ वर्क, नो, समबडी वुड लाइक टू हैव द इम्पोर्टेंस इन द पर्टिकुलर वे. तो हमें क्या कि इज्जत मिलनी चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. थियोसॉफी में ऐसा है, लेकिन वो दिमाग को निकालने के लिए उनको ये काम सौंपा गया लीडबीटर साहब को कि ये जो पत्रव्यवहार होता है, जो पोस्ट है, उस पर आप स्टैंप लगाइए. Earlier he felt that, oh, is it my work to stamp to have pasting of the stamps on different posts? तो उनको ये बुरा लगा था उस वक्त. तो उन्होंने महसूस किया था, अरे स्टैंप लगाना मेरा काम थोड़ी है. तो उनके दिमाग से जो अहम भाव है उसको वहां से निकालना था. ये गुरुदेव का उन्होंने ये फसाना बताया कि तो मेरा फसाना है, मेरी तो बातें कुछ और थी, मैं कुछ अफसाना और लिखने गया, लेकिन मेरा ये दिमाग से ये निकल गया. ये बड़ी गहरी बात है
ठीक है, कभी वक्त मिलेगा तो और भी गाथाएं बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आभा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी या सुषमा जी कुछ कहना चाहें इस वक्त? शास्त्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? How are you, sir? फाइन सर। Sir, the three people have done well, but essence of this book is about personal experiences of C.W. LEADBEATER. He has given wonderful I couldn't get a book in detail downloaded. Otherwise, I could have participated in discussion. Okay, I'll send you the PDF of the book today on your WhatsApp. Search for it, sir. Okay, sir. Thank you. Yes, anyone else? अर्चना जी कुछ कहना है? सर शीतल बोले। हाँ शीतल जी, वीडियो ऑन कीजिए ना। हाँ जी, पीडीएफ तो मुझे भी भेजिएगा। और बिल्कुल। और आज का जो तीनों ने बोला है, तो हिंदी ने हिंदी ये किया है, डिपिक्ट किया है, मराठी ने मराठी डिपिक्ट किया है, और इंग्लिश में प्योर इंग्लिश डिपिक्ट किया है। तो आज रियली त्रिवेणी है, जैसे जी शिंदे जी ने बोला। तो आज का एकदम सफल रहा है। और मृणाल को मैं बोलूंगी कि उसने ना जैसे भंपक वर्ड बोला है, फोड़नी देने बोला है, वो प्योर मराठी जो है वही समझ सकता है कि उसमें की जो लैंग्वेज की अलंकारिकता है, तो परफेक्ट उसमें से इसेंस निकलता है उन शब्दों से। और चैत्रा जी का पीपीटी ये बहुत अच्छा है। सिर्फ आज फिर से कहना चाहूंगी कि यानी मैं ये तरल जी से कहना चाहूंगी कि अगर कोई पीपीटी देता है, तो जैसे अपने मास्टर्स के फोटो हैं, वो ना आए तो अच्छा रहेगा, ऐसा हर बार बताया जाता है। ओके, ये ख्याल रखेंगे बिल्कुल। वो हमारे यानी हम लोग हर किसी के सामने वो नहीं दे सकते, जैसे श्रद्धेय, इतने ज्यादा श्रद्धेय है वो कि मैं उजागर करना सही नहीं होता। नहीं, आपने जो मार्गदर्शन दिया उससे हम अगले भाग में जरूर ध्यान रखेंगे और इसमें भी कोशिश करेंगे कि अगर हटा पाए तो हटा सकते। और पूनम जी को स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने सचमुच इतने बाधा होने के बावजूद बहुत अच्छी तरह से लेक्चर डिलीवर किए हैं। थैंक यू चैत्रा जी, थैंक यू तरल जी। तरल जी, मैं ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ बस। अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, और आपके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि समय समय पर जो आप पुस्तकें लेते हैं तो हम लोगों की स्मृति को ताजा कर देते हैं और किताब फिर से दोबारा पढ़ने के जो है प्रेरणा मिलती है। और बहुत बहुत धन्यवाद तरल जी और तीनों वक्ताओं को, बहुत सुंदर ट्रांसलेशन प्रस्तुत किया था। धन्यवाद शिल्पा जी। सॉरी आपका वीडियो नहीं था, इसलिए मैं आपको पटल पे नहीं रख पाया। आभा जी कहिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू 3 ऑफ द स्पीकर्स, पूनम, चैत्रा एंड मृणाल जी। बाकी सब बोल ही दिया है, मेरे लिए कुछ बचा नहीं। सबसे पहले तो यही चीज थी कि थैंक्स टू द लेडबीटर, उन्होंने इतने अच्छी, मैंने आई हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस बुक, अभी मैंने कंप्लीट की है ये। ले आई थी मैं पुणे से ही, लेकिन इसमें एक एक चीज जो यहाँ अभी डिपिक्ट भी किया, और इतना अच्छा उनका वे ऑफ राइटिंग है, तो ऐसा लगता है जैसे वी आर लुकिंग एट द इवेंट्स, हम उन घटनाओं को देख रहे हैं, द वे ही डिपिक्टेड। तो ये जो स्टोरी टेलिंग की जो एक आर्ट है, ये भी एक आर्ट है लिखने की भी, वो रियली उसमें माहिर है लेडबीटर्स भी। दूसरे ये कि ब्लावत्स्की के बारे में कुछ भी कहिए, महान व्यक्तित्व की आलोचना किसकी नहीं हुई, कृष्ण की भी हुई। कृष्ण के आलोचक आज भी हैं जो उनको नहीं अच्छा मानते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि जब तक आलोचना है तो महान व्यक्तित्व की यही है कि वो उस कसौटी पे खरा उतरे। तो दैट इज द क्राइटेरिया। आपके अच्छाई में तो सभी ऊपर कर जाते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन बुराई के जब आपको घृणा करने वाले भी उतने ही लोग हों और तब आप ग्रो कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो इस चीज की जो खूबी है वो मैडम में थी, जो मैंने पूरा पढ़ा,
आज तो मैंने सुना, लेकिन ये मुझे पढ़ने में बुक जितना आनंद आया वो मैंने बहुत रस ले लेके पढ़ा, बहुत अच्छी तरह, एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट। तो ये बात है कि महान व्यक्तित्व की आलोचना तो होती है, कृष्ण को क्या नहीं सहन करना पड़ा होगा, और वो भी अपने रिश्तेदारों से भी, दूसरे की बात तो छोड़िए। तो ये जो चीजें हैं यही कसौटियां हैं। और उसके बाद में जो एक चीज निखर के आती है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स शी वॉज ग्रेट। और फिर जो भक्त बनते तब डिवोटीज बनते हैं। जमाना ऐसा नहीं है, आपको ऐसे ही नहीं सिर चढ़ाता है, आपकी पूरी टेस्टिंग होती है, तब वो चढ़ाता है ऊपर। तो इसके लिए जो है रियली मतलब आई सैल्यूट टू बोथ मैडम ब्लास्की एंड CW लेडबीटर, जो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इतनी ऑनेस्टली डिपिक्ट किया है। तो इतना ही कहूंगी मैं। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, थैंक्स अ लॉट। अब अर्चना जी, आपको कैसा लगा? एक मेरा एक सजेशन है तरल जी। बोलिए ना शिंदे जी। हाँ, सजेशन टू चैत्रा। जी। Whenever you are explaining about the photos, etc., if you have found the names of the masters, don't expose them. Just say these are the masters of H.P. Blavatsky. Yeah. And because we don't know exactly who are who, so we may mislead the public. So unnecessarily don't say the names of the master. Yes. Only say these are the masters. That photo shows she is with the masters, her teachers or her masters. Correct. Okay. Like this you can say. Sure, sir. In public talk, you use like that. Okay. And if anybody asks about it, then don't say anything. You can read more about them on the Google, etc. You can say. I see. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Yes, Thank you, Archana sir. मुझे तो खास चैत्रा जी का और मृणाल जी और पूनम जी का आभार मानना है, बहुत सुंदर से किया। और चैत्रा जी, आपका जो इंटरप्रिटेशन एज अ क्रिएटिव वॉल सी थ्रू के लिए आपने वॉल का जो इमेजिनेशन मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। आप कुछ अलग से डाल के उसको एक नया सा एक एंगल देती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही बात की किताब की, जो मैंने पढ़ी नहीं अभी, मैं बहुत ही प्रेरित हूँ कि मुझे पढ़ना चाहिए। जिस तरह से लेडबीटर जी लिखते हैं ना, वो ऐसे लगता है वो पूरे भाव से तो भरे हुए हैं ही, मगर फिर भी वो अपने आप को अलग से लगा के कितनी सुंदरता से वो लिख रहे हैं कि मुझे ये भी हुआ, मुझे वो भी हुआ, मुझे ये भी हुआ। बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे कबूल कर लेना। मुझे आई एम रियली टेम्पटेड। तो तरल जी प्लीज मुझे भी PDF दे दीजिएगा। थैंक यू। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भेजूंगा। Sir, actually, how Theosophy came to me is that book written by Leadbeater, but someone have researched on different books and they have combined the complete life of CW Leadbeater, but I haven't found in English. It is written in Kannada. Yogi Leadbeater avara Jeevana Charitra. So recently I saw that book. It was written very long back, only 1 or 2 edition, and it is almost torn, which is in City Lodge. So I read that book, and in that, more detailed than this book it is there. So it has but I have not found. I searched a lot, I didn't find the English version of it. Then later I asked some people that they have researched from different even about some Egypt, like Leadbeater's life, beginning of his life. Martinez, there was a guy, and some from different books they have got it. So I don't know if anyone can make it in English or something. Maybe it will be, or if anyone finds that name similar English version, let me know. Can we do it? Can we do it translation on our own? Maybe in Gujarati. Do we have it in Gujarati, Arshodan bhai? That या तो अपन book इंग्लिश में भी तो कर सकते हैं ना, अपन से नहीं कर सकते अर्चना जी, कुछ। वो जो कौन सी दूसरी भाषा की किताब? योगी, कन्नड़ा की है It's in Kannada. Yogi Leadbeater avara Send me the Jeevana name of the Charitra. book. I will. ರಾಚಪ್ಪ ಅವರು ಬರ್ದಾರೇನ್ರಿ? ರಾಚಪ್ಪ ಅವರು. ರಾಚಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬರ್ದಾರ. ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಟಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಚಪ್ಪ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮೆಸಾನಿಕ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ರಾಚಪ್ಪ ಅವರಲ್ಲ, ಆಥರ್ ಬಂದು ರಾಚಪ್ಪ ಅವರಲ್ಲ, ಲಲಿತಾ ಅವರು. ಲಲಿತಾ ಲಲಿತಾ ನಟರಾಜನ್.
ನಟರಾಜನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನೊಂದ್ಸತಿ ಅದು आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, हम उसके we will find it. We will find it. ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್. या तो मेरे ख्याल से अभी 8 भी बज गए हैं और कोई प्रश्न या कोई सुझाव ना हो तो हम समापन की ओर चलें. मुझे किसी का वो नहीं दिख रहा है कि कोई और कहना चाह रहा हो. तो अतुल भाई Sir, प्लीज I have a simple question. Sir. बोलिए सर. Shall I ask? Sir, shall I ask? Yeah, please go ahead. Start your meeting. Chaitra madam especially has to answer for me. Chaitra madam in Karnataka state, especially from Bangalore, I think somebody comes to international meet every year. He translates all the speeches into Kannada, Telugu. Can you give his name to me? Sir, she will find out and we will exchange. Definitely, I will let you know. Okay, sir. Okay. So Sir. that you can help us. Yes, Atul ji, please go ahead. યસ, કેશવરબેન સીઓનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो
विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। खूप खूप धन्यवाद.